اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب اذا لم یوجد الا ثوب واحد، اس مسئلے کا بیان کہ اگر صرف ایک کپڑا پایا جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ ابراہیم یہ بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس کھانا لایا گیا اور یہ روزے سے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مصعب بن عمیر شہید کیے گئے اور وہ ہم سے اچھے تھے، ان کو ایک چادر میں کفن دیا گیا۔ کفن ایسا تھا کہ اگر سر ڈھکا جاتا تو پیر کھل جاتا اور اگر پیر ڈھکا جاتا تو سر کھل جاتا، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا تھا اور حمزہ شہید کیے گئے اور وہ ہم سے بہتر تھے، پھر ہمارے لیے دنیا کشادہ کر دی گئی جو کر دی گئی، یا یوں کہا ہمیں دنیا دی گئی جو دی گئی۔ ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ ہماری حسنات اور نیکیاں دنیا ہی میں دے دی گئیں۔ پھر رونے لگے اور کھانا چھوڑ دیا۔ یہاں بتانا مقصود یہی ہے کہ اگر ایک ہی کپڑا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو اسی ایک کپڑے میں کفن دیں گے اور اسے اس کی شرمگاہ ڈھک دیں گے اچھے سے، اور اگر سر تک پہنچتا ہے اور پیر کھلتا ہے تو سر ڈھک دیں گے اور پیر کھول دیں گے، اور جب قبر میں رکھیں گے تو پیر کے اوپر کوئی چیز ڈال دیں گے۔ لیکن اگر کپڑا بہت چھوٹا ہے، صرف کمر میں باندھنے کے لائق ہے، تو اس کی ستر پوشی کریں گے اور اوپر بھی کھلا چھوڑ دیں گے اور نیچے بھی کھلا چھوڑ دیں گے، یعنی گھٹنے کے نیچے، اسی حالت میں اس کو دفن کر دیں گے۔ باب اذا لم یجد کفنا الا ما یواری راسا او قدمیہ غطى راسا، اس مسئلے کا بیان کہ اگر کفن نہ ملے مگر اتنا جتنے میں سر ڈھک جائے یا دونوں پیر ڈھک جائیں تو اس کے سر کو ڈھکیں گے۔ خباب بن عرد کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، ہم اللہ کی خوشنودی چاہتے تھے، ہمارا اجر اللہ پر واقع ہوا، ہم میں سے بعض لوگوں کا انتقال ہو گیا اور اپنے اجر میں سے کچھ بھی نہیں کھایا، انہی میں مصعب بن عمیر ہیں، اور ہم میں بعض ایسے ہیں جن کا پھل پک چکا ہے اور وہ چن چن کے کھاتا ہے۔ احد کی لڑائی میں وہ شہید کیے گئے، ان کے لیے ہمیں صرف ایک چادر ملی، ان کو کفن دینے کے لیے صرف ایک چادر ملی۔ چادر ایسی تھی کہ جب ہم ان کے سر کو ڈھکتے تھے تو ان کے دونوں پیر کھل جاتے تھے، اور جب ان کے دونوں پیر ڈھکتے تھے تو ان کا سر کھل جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ان کے سر کو ڈھک دے اور ان کے دونوں پیر پر اسخر گھاس ڈال دیں۔ باب من استعد الکفن فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم ینکر علیہ، یہ جو حدیث ابھی میں نے پڑھی ہے اس میں حضرت خباب کا تذکرہ ہے۔ خباب ابن الارت بن جندلہ ابو یحییٰ التمیمی الکوفی مولا بنی زہرہ، یہ کوفہ میں ان کی اقامت رہی ہے۔ 37 میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت علی نے کوفہ میں ان کو دفن کیا، اور یہ واقعہ صفین سے واپسی کے بعد کا ہے۔ یہ بدری ہیں اور مہاجرین اولین میں سے ہیں۔
اور سابقین اولین میں سے ہیں۔ انہیں اللہ کے راستے میں کافی ستایا گیا اور کافی مارا گیا۔ اس مسئلے کا بیان کہ آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کفن کا کپڑا تیار کر لیا، پر کوئی نکیر نہیں کی گئی اور اس پر اعتراض نہیں کیا گیا۔ ایک خاتون تھی صحابیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بنی ہوئی چادر لے کر آئیں، حاشیہ دار۔ آپ لوگ جانتے ہو کہ بردہ کیا ہے؟ یہاں لفظ استعمال کیا گیا ہے بے بردتن منسوجہ۔ جانتے ہو بردہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا شملہ ہے، کہا ہاں۔ قالت نسجتھا بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے اسے بنا ہے اور میں لے کر آپ کو دینے آئی ہوں، آپ کو پہنانے آئی ہوں کہ آپ اسے استعمال کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا، ایک ضرورت مند کی طرح سے گئے، آپ نے پہنا، پہن کے نکل کے آئے اور وہی آپ کا اظہار تھا۔ فلاں نے اس کو بہت پسند کیا اور انہوں نے کہا آپ ہمیں اسے دے دیں، کتنی شاندار ہے اور کتنی اچھی ہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا تم نے اچھا نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہنا حاجت مند کی طرح سے، آپ کو اس کی ضرورت تھی، پھر تم نے مانگ لیا۔ اور تم جانتے ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز رد نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے اس لیے نہیں مانگا ہے کہ میں اسے پہنوں اور استعمال کروں، میں نے اسے مانگا ہے تاکہ وہ میرا کفن بنے۔ سہل کہتے ہیں کہ پھر وہی ان کا کفن بنا۔ یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ آدمی اپنی زندگی میں کفن تیار کر سکتا ہے اور کفن رکھ سکتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، بہت سارے لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں سے کپڑا خرید کر کے اور زمزم میں بھگو کر، زمزم میں دھو کر لاتے ہیں اور اس کو کفن بناتے ہیں، تو زمزم کی وجہ سے وہ لوگ اسے ایک خاص نظر سے دیکھتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی مکہ سے بھی کپڑا لائیں تو ٹھیک ہے، لیکن زمزم میں دھونا اور ایک طرح سے گویا اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہ صحابیہ تھی اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے کپڑا بنا تو بننے کا فن ان کو آتا تھا، اسی لیے اس حدیث کو جب پڑھائی جاتی ہے یا لوگ پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں چاہے بچیوں کو یا بچوں کو کہ مردوں اور عورتوں دونوں کے ہاں فن آنا چاہیے، چاہے سلائی کا فن ہو، بنائی کا فن ہو، کڑھائی کا فن ہو۔ موجودہ زمانے میں کمپیوٹر کی حکومت ہے تو کمپیوٹر بھی اچھے سے آنا چاہیے، خاص طور سے جو تعلیم و تعلم سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد میں ہمارا جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا خواتین جنازے کے ساتھ جا سکتی ہیں؟ تو خواتین کے جنازہ پڑھنے کی بات تو کل میں بہت تفصیل سے بتایا، لیکن جنازے کے ساتھ قبرستان یہ نہیں جا سکتی ہیں۔ باب اتباع النساء الجنائز، خواتین کا جنازے کے پیچھے جانا۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہمیں جنازہ کے پیچھے جانے سے روک دیا گیا تھا، ولم یوزم علینا، لیکن سختی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ ہمیں نہیں روکا گیا تھا۔ یہاں جو مسئلہ ہے عورت کا جنازے کے ساتھ قبرستان جانا تو یہ منع ہے اور بہت سختی کے ساتھ منع ہے۔ ولم یوزم علینا، اور ہم کو پختگی کے ساتھ اور سختی کے ساتھ نہیں روکا گیا تھا۔ یہ ام عطیہ کی اپنی ذاتی رائے تھی، خواتین کو سختی سے
कब्रिस्तान जाने से रोका गया है। और ये मसला अपनी जगह पर है कि ख़वातीन क्या कभी कभार कब्रिस्तान जा सकती हैं या नहीं जा सकती हैं। तो दोनों बातें कही गई हैं, जा सकती हैं उनकी अपनी दलीलें हैं, और नहीं जा सकती हैं इसकी भी अपनी दलील है। बेहतर तो यही है कि ना जाए, और जाए तो कभी कभार जाए, वहाँ रोए नहीं, चिल्लाए नहीं, नौहा ना करे, मातम ना करे, बेसब्री का सबूत ना दे, या कब्रों को लेकर के, मुर्दों को लेकर के जो गलत काम होता है और उनकी मदद तलब की जाती है, इस्तियाना यानी मदद तलब की जाती है, फरियाद तलब की जाती है, या कि और दूसरी बहुत सारी बिदअतें या शिरकिया काम किए जाते हैं, तो सब न किया जाए। बाब इहदादिल मरअति अला गैरि ज़ौजिहा, शौहर के अलावा दूसरे मुर्दों पर औरत का सोग मनाना। इहदाद के माने होते हैं सोग मनाना। तो जब शौहर का इंतकाल होगा तो औरत 4 महीना 10 दिन तक सोग मनाएगी, और जब कोई दूसरा करीबी रिश्तेदार फौत होगा तो सिर्फ 3 दिन तक, और वो भी शरई दायरे में। मोहम्मद बिन सीरीन रिवायत कहते हैं कि उम्मे अतिया के एक बेटे का इंतकाल हुआ। जब तीसरा दिन आया तो उन्होंने कोई पीली और जर्द चीज मंगवाई और उसे अपने चेहरे पर लगा लिया, और उन्होंने कहा कि हमें इस बात से मना किया गया है कि 3 दिन से ज्यादा हम सोग मनाएं सिवाय शौहर के। शौहर पर 4 महीना 10 दिन तक सोग मनाएंगे, लेकिन दूसरे लोग हैं तो 3 दिन तक, थोड़ा सा पहले दिन ज्यादा गम होगा, दूसरे दिन थोड़ा कम हो जाएगा, तीसरे दिन और ज्यादा कम हो जाएगा। इसका ख्याल रखना चाहिए। दूसरी रिवायत ये है कि ज़ैनब बिनते अबी सलमा रिवायत करती हैं, कहती हैं कि जब शाम से अबू सुफियान की वफ़ात की खबर आई, इस मसले को यहीं हल कर लेते हैं कि शाम में अबू सुफियान का इंतकाल नहीं हुआ था, बल्कि उनका इंतकाल मदीना में हुआ था। शाम में उनके बेटे यजीद बिन अबू सुफियान का इंतकाल हुआ था। तो दात उम्मु हबीबा रदियल्लाहु अन्हा बिसुफ्रतिन फिल यौमि सालिस, इनकी बेटी उम्मे हबीबा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, तीसरे दिन जर्दी मंगवाई और अपने दोनों हाथों में लगाया और अपने दोनों रुखसार पर लगाया और कहा कि मुझे इसकी हाजत नहीं है, मैं इसके लगाने से मुस्तगनी और बेनियाज हूँ। अगर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात ना सुनी होती तो मैं ऐसा ना करती। किसी औरत के लिए जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखती हो, मुनासिब नहीं है, जायज़ नहीं है कि किसी मुर्दे पर 3 दिन से ज़्यादा शोक मनाए सिवाय अपने शौहर के। उस पर 4 महीना 10 दिन का शोक मनाएगी। और ज़ैनब बिनते अबी सलमा की रिवायत है, इन्होंने नाफे को बताया, कहा कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी उम्मे हबीबा के पास गई। उन्होंने कहा कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि किसी औरत के लिए जायज़ नहीं है जो अल्लाह पर ईमान रखती हो और यौम आखिरत पर ईमान रखती हो कि किसी मुर्दे पर 3 दिन से ज़्यादा शोक मनाए सिवाय अपने शौहर के। 4 महीना 10 दिन का उस पर शोक मनाएगी। फिर मैं ज़ैनब बिनते जहश के पास गई। जब उनके भाई का इंतकाल हुआ, उन्होंने खुशबू मंगवाई और उसे अपने जिस्म में और अपने चेहरे में लगाया। फिर कहा कि मुझे खुशबू लगाने की हाजत नहीं है। हाँ, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिंबर पर सुना है, मिंबर से आप कह रहे थे किसी औरत के लिए जायज़ नहीं है
जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखती हो कि किसी मुर्दे पर 3 दिन से ज्यादा शोक मनाए सिवाय अपने शौहर पर 4 महीना 10 दिन तक वो शोक मनाएगी और ये 4 महीना 10 दिन मखसूस अंदाज में गुजारेगी। ये जो 3 दिन शोक के हैं इसमें भी सीना पीटना, नौहा करना, काले कपड़े पहनना, बाल नोचना, ये इस तरह की चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं और जायज़ नहीं है। बस पहले दिन, जैसा कि मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले, कि पहले दिन गम ज़्यादा होता है, दूसरे दिन थोड़ा हल्का हो जाता है, तीसरे दिन और हल्का हो जाता है, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाबू ज़ियारतिल क़ुबूर, कब्रों की ज़ियारत का बयान। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत के पास से गुजरे। वो खातून एक कब्र के पास रो रही थी। रसूल अकरम ने कहा, तुम अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो और सब्र करो। उन्होंने कहा, हटो हटो, तुम अपना रास्ता लो, मेरी मुसीबत की तरह से तुमको मुसीबत नहीं आई है और तुम नहीं जानते हो कि मेरे ऊपर कौन सा पहाड़ टूटा है मुसीबत का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चले आए। इस खातून से कहा गया, अरे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अब वो डर गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आई। आपके दरवाजे पर कोई चौकीदार नहीं था। उन्होंने कहा, मैं आपको नहीं पहचान सकी थी। आपने कहा, इन्नमा सब्र इंद सदमतिल ऊला, वो सब्र जिस पर अजरो सवाब मिलेगा वो मुसीबत के पहले झटके के वक्त है। दुनिया सब्र कर लेती है, रोते 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 आखिर सब्र आ जाता है, करार आ जाता है, लेकिन इसमें सवाब नहीं है, क्योंकि ये थक करके आदमी ने सब्र किया है। सब्र के पहले झटके के वक्त, मुसीबत के पहले झटके के वक्त ही सब्र का दामन थाम लेना। जो मुसीबत के वक्त दुआ पढ़ी जाती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसको पढ़ना और उसके बाद में जुबान बंद कर लेना, आंखें जारी रहें, उससे आंसू बहे, लेकिन जुबान से कोई चीज़ ना कहें, शिकवा ना हो और शिकायत ना हो। यहाँ ये खातून कब्र के पास बैठी थी, पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के पास आने के सिलसिले में कुछ नहीं कहा। इसी हदीस से उलमा इस्तिदलाल करते हैं कि ख़वातीन भी कब्रस्तान जा सकती हैं, और रसूल अकरम ने फरमाया है कि वो औरतें मलऊन हैं जो बहुत ज़्यादा कब्रस्तान पर जाती हैं और कब्रों की ज़ियारत करती हैं। और रसूल अकरम ने भी कहा है कि कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर अला फज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, मैंने तुम लोगों को कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, लेकिन अब ज़ियारत करो। ज़ियारत से मना इस वजह से किया था कि जाहिलियत का ज़माना करीब करीब था और लोगों की गुमराहियाँ कब्रों से वाबस्ता थीं और बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थीं और वाबस्ता थीं, तो रोक दिया था। फिर इजाज़त दे दी और शर्तें लगाई, तुम उनकी ज़ियारत करो, ये तुम्हें आखिरत की याद दिलाएगी। तो बहुत सारे उलमा इस बात की तरफ गए हैं कि औरत कब्रस्तान नहीं जाएगी, उसका दिल कमज़ोर होता है, उसका दिमाग कमज़ोर होता है, जज़ा करेगी, फ़दा करेगी, इस वजह से वो ना जाए। और उलमा की एक जमात, उनमें अल्लामा अलबानी रहमुल्लाह भी है, इनका मानना है कि जिस तरह से तज़कीर की मर्दों को ज़रूरत है उसी तरह से औरतों की भी ज़रूरत है, वो जा सकती है। इसमें मुतदिल रास्ता यही है कि कभी कभार जा सकती है, लेकिन सब्र के साथ। फल्लाहु अलम। बाब कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम के इस फरमान का बयान।
कि मय्यत को अजाब दिया जाता है उसके घर वालों के पास रोने की वजह से, अगर रोना उनके घर का चलन है और उनके यहाँ नौहा करना पाया जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। यहाँ पर हमारे बाब में सिर्फ कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा है। आयत शुरू होती है मोमिनों को खिताब करके, ए ईमान वालों तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम के अजाब से बचाओ। तो आदमी की जिम्मेदारी है कि अपने आप को बचाए तो शरीयत के सारे अहकाम पर अमल करे, और अपने अहलो अयाल को बचाए तो अगर अपने घर में कुफ्र है, शिर्क है, बिदात है, नौहा है, मातम है, शेवन है, मरसिया ख्वानी है या और दूसरी बहुत सारी बिदातें हैं, गुनाह हैं, दयूसियत है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि हिकमत के साथ धीरे धीरे सारी चीज़ों को रोके और सारी चीज़ों को ख़त्म कर दे। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व मसूलुन अन रइयती, तुम में से हर आदमी राई है, निगरान है, निगहबान है और अपनी रियाया का जिम्मेदार होगा, उससे उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा। फ़इज़ा लम यकुन मिन सुन्नती, तो यहाँ जो पूछा जाएगा तो उससे ये भी पूछा जाएगा कि तुम्हारे घर नौहा होता था, तुम्हारे यहाँ मातम होता था, तुमने रोका क्यों नहीं, तुमने समझाया क्यों नहीं। अगर नौहा मातम उनके घर का तरीका नहीं है, यहाँ पर दो जगह सुन्नत आया है, ये दोनों अपने लुग़वी माना में है। अगर उनका तरीका नहीं है तो ये ऐसे है जैसे कि हजरत आयशा ने कहा था, ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर कोई आदमी जुल्मन कत्ल किया जाएगा, यहाँ एक आयत छूट गई, वह हुआ का कौलिही, और ये अल्लाह के इस फरमान की तरह है, व इन तदउ मुस्कलतुन, अगर और कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरे को अपना बोझ उठाने के लिए बुलाए तो वह उसका बोझ नहीं उठाएगा। वमा युरखसु मिनल बुकाई मिन गैरि नौम, बिना नौहा के रोना जायज़ है और इसकी रुख्सत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर किसी को नाजायज़ तरीके से कत्ल कर दिया जाता है तो इब्ने आदम के आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे पर उसका गुनाह जाएगा। उनके बेटे थे हाबिल और काबिल। काबिल कातिल थे हाबिल के, ये किस्सा बहुत मशहूर है, उन्होंने ही इसकी बुनियाद डाली थी। तो काबिल पर हर नाजायज कत्ल का गुनाह जा रहा है, लिअन्नहु सन्नल क़त्ल, क्योंकि इन्होंने कत्ल की बुनियाद डाली और वो तरीका इजाद किया। वज़ालिका लिअन्नहु अव्वल मन सन्नल क़त्ल, ये पहले शख्स हैं जिन्होंने कत्ल की बुनियाद डाली और उसका तरीका इजाद किया। अबू उस्मान रिवायत करते हैं, कहते हैं कि मुझे उसामा बिन ज़ैद ने बताया कि रसूल अकरम की एक बेटी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहला भेजा, वो हज़रत ज़ैनब थी, कि मेरा एक बेटा मरने के करीब है। जो लफ्ज़ आया है वो ये है क़ुबिज़, मेरा बेटा उसका इंतकाल हो गया, तो इंतकाल नहीं हुआ था, इंतकाल होने के करीब था, एहतिज़ार की हालत में थे। फ़ातीना, तो आप आइए। फ़अरसला, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वापस भेजा, इनको सलाम कहा और कहा कि अल्लाह के लिए है जो ले लिया और उसी के लिए है जो दिया। जो लिया वो अल्लाह का है और जो दिया वो भी अल्लाह का है।
वकुल्लुन इंदहु बिअजलि मुसम्मा, और हर एक की मुकर्ररा मुद्दत है, हर एक की मुअय्यना और मुकर्ररा मुद्दत है, इसलिए तुम सब्र करो और अजर सवाब के उम्मीदवार हो। उन्होंने फिर पलटकर कासिद को भेजा और कसम दिलाई कि आप जरूर आए। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, आपके साथ साद बिन उबादा, मुआज बिन जबल, उबई बिन काब, जैद बिन साबित और कई लोग खड़े होकर के गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे, आपकी गोद में बच्चा दे दिया गया, उसकी जान निकल रही थी, लंबी लंबी सांसें चल रही थी। काल हसीबतु अन्नहु काल कअन्नहा शन्नुन, यूं लगता था जैसे कि पुराना मशकेसा है। फफाजत ऐना, आपकी आंखें अश्कबार हो गईं, आंखें बहने लगीं। साथ ने कहा, अल्लाह के रसूल, मा हाजा, ये क्या है? आपने कहा, ये रहमत है, अल्लाह ताला अपने बंदों के दिलों में इसे डाल देता है, और अल्लाह ताला रहम करने वाले, अपने रहम करने वाले बंदों पर रहम करता है और रहम फरमाता है। उनका ये तसव्वुर था कि जब उन्होंने कहा था कि ऐ अल्लाह के रसूल, आप भी रो रहे हैं, हजरत साद ये तसव्वुर करते थे और ये ख्याल करते थे कि अंबिया सब्र शकीब के पहाड़, इतने अजीम, इतने बड़े, वो कैसे रोएंगे, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रो रहे हैं? तब आपने बताया कि ये रहमत है। दूसरी रिवायत अनस बिन मालिक की है, वो कहते हैं कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी के जनाजे में शरीक हुए, वो हजरत उम्मे कुलसूम थी। कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पर बैठे थे, मैंने देखा कि आपकी दोनों आंखों से आंसू जारी हैं। काला फकाल, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में से कोई ऐसा शख्स है जिसने आज की रात जेमा ना किया हो, आज की रात अपनी बीवी के पास ना गया हो? अबू तलहा ने कहा, मैं। आपने कहा, कब्र में तुम उतरो। वो कब्र में उतरे और उनके तदफीन का सारा काम किया। हजरत अबू तलहा ये करीबी नहीं थे, ना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के महरम थे। ये हजरत उस्मान की बीवी थी। हजरत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने उसी रात अपनी एक लौंडी के साथ सोबत की थी। तो और ये बात मालूम हो गई थी, जाहिर हो गई थी, और उनकी बीवी बहुत ज्यादा बीमार थी और इंतकाल कर गई। तो उलमा कहते हैं कि शायद इसी वजह से और इसी नाराजगी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू तलहा को कहा कि तुम कब्र में उतरो। यहाँ पर जो अगली रिवायत है, अब्दुल्ला बिन उबैदुल्लाह बिन अबी मुलैका, वो कहते हैं कि हजरत उस्मान के एक बेटे का इंतकाल हुआ, एक बेटी का इंतकाल हुआ, उनका नाम उम्मे अबान था। ये लोग उस वक्त मक्का में थे। हम लोग उनके जनाजे में शिरकत के लिए आए। इब्ने उमर और इब्ने अब्बास भी शिरकत के लिए हाजिर हुए थे। मैं इन दोनों के बीच में बैठा हुआ था। ये जो मैं है, इनसे मुराद अब्दुल्ला बिन उबैदुल्लाह बिन अबी मुलैका, या यूं कहा, मैं उनमें से एक के पास बैठ गया, फिर दूसरे आए और मेरे बगल में बैठ गए। अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा अम्र बिन उस्मान से, इन लोगों को रोने से क्यों नहीं रोकते? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, मईत को उस पर उसके घर वालों के रोने की वजह से अजाब होता है। इन दोनों के दरमियान तत्बीक की सूरत वही है कि उसी मईत को अजाब होगा जिसके घर इसका चलन था
اور اس نے روکا نہیں، لیکن اگر وہ روک کے آیا ہے تو اس کو عذاب نہیں ہوگا، اور اگر وصیت کر کے آیا ہے تو بھی عذاب ہوگا، اور اگر نہیں روکا ہے تو بھی عذاب ہوگا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ بھی یہی بات کہتے تھے۔ ثم حدث قال، پھر انہوں نے حدیث بیان کی اور کہا میں مکہ سے عمر کے ساتھ پلٹا، جب ہم بیضا میں آئے تو ایک پیڑ کے سایہ کے تلے کچھ سوار تھے، ان کو دیکھا، کہا جاؤ اور ان سواروں کو دیکھو کون ہیں وہ۔ گئے، کہتے ہیں میں نے دیکھا اس میں صہیب بھی تھے، میں واپس آیا اور میں نے بتایا، کہا جاؤ اور صہیب کو بلا لاؤ۔ میں پلٹ کر گیا اور صہیب سے کہا چلو، اور امیر المومنین بلا رہے ہیں ان سے ملو۔ جب عمر کا شہید ہوئے تو صہیب آئے اور رو رہے تھے، انہوں نے کہا، اور وہ کہہ رہے تھے یعنی صہیب، ہائے میرا بھائی، ہائے میرا ساتھی۔ عمر نے کہا صہیب تم میرے اوپر رو رہے ہو، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میت کو اس کے گھر والوں کے بعض رونے کی وجہ سے عذاب ہوگا۔ یہاں بعض ہے اور ایک جگہ بے بکائی ہی علیہ ہے، اور دونوں میں بڑا لطیف فرق ہے، یعنی ہر رونے کی وجہ سے عذاب نہیں ہوگا، بعض رونے کی وجہ سے ہوگا۔ ابن عباس کہتے ہیں جب عمر کا انتقال ہو گیا میں نے اس کا تذکرہ عائشہ سے کیا تو انہوں نے کہا اللہ عمر پر رحم کرے، اللہ کی قسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ مومن کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ کافر کے عذاب میں اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اضافہ ہو جاتا ہے اور اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور کہا تمہارے لیے قرآن تو کافی ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ ابن عباس نے کہا اللہ کی واللہ ہوا ازحق، آپ کا اللہ ہی رلاتا ہے اور وہی ہنساتا ہے۔ ابن ابی ملیکہ نے کہا واللہ ما قال ابن عمر رضی اللہ عنہما شیئا، ابن عمر نے کوئی چیز نہیں کہی۔ اس میں آپ یہ سمجھ کے چلیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو انکار کیا تھا تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یہ بات فرمائی تھی کہ میت کو ان کے گھر والوں کے بعض رونے کی وجہ سے عذاب ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودیہ کے پاس سے گزرے، اس کے گھر والے اس پر رو رہے تھے، آپ نے کہا یہ لوگ اس پر رو رہے ہیں اور اسے اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ ابو بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب عمر شہید کیے گئے تو صہیب رونے لگے اور کہنے لگے ہائے ہمارا بھائی۔ عمر نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میت کو زندے کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو رونا مستحب ہے، اس پر رونا چاہیے اور آنسو بہانا چاہیے، اس سے اس کو نیکی ملے گی۔ لیکن نوحہ کرنا، ماتم کرنا، شیون کرنا، گال پیٹنا، سینہ پیٹنا، کپڑا نوچ دینا، ہائی وائی کرنا، میت کے محاسن کو بیان کر کے رونا، یہ ساری چیزیں منع ہیں اور اسی پر عذاب ہوگا۔ ما یکرہ من النیاحۃ علی المیت، میت پر نوحہ کرنا منع ہے،
मकरूह है यानी मना है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था इन औरतों को छोड़ दो, ये अबू सुलेमान पर रो ले, हाँ मिट्टी न डाले अपने सर पे और जोर से ना रोए। अबू सुलेमान खालिद बिन वलीद है, खालिद की, हजरत खालिद की ये कुनियत है। उनकी वफात पर औरतें रो रही थीं। अन्नक़ु अत्तुराब वल रास, सर पर मिट्टी डालना। वल्लक़लक़तु, अल्लक़लक़तु अस्सौत, आवाज के साथ रोना। मुगीरा बिन शोबा बयान करते हैं, कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे कि मेरे ऊपर झूठ बोलना आम लोगों पर झूठ बोलने के मानिंद नहीं है। जो मेरे ऊपर जानबूझकर झूठ बोले वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आपने कहा था जिसके ऊपर नौहा किया गया, मनीहा ये मजहूल है, नीहा नाहा, जिसके ऊपर नौहा किया गया तो नौहा किए जाने की वजह से उसको अजाब होगा। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं अपने वालिद से, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि मय्यत को उस पर नौहा किए जाने की वजह से कब्र में अजाब होगा। और आदम शोबा से रिवायत करते हैं अलमय्यितु युअद्दबु बिबुकाइल हय्य अलैहि, जिंदों के रोने की वजह से मुर्दे को अजाब होगा। तो यहाँ इसमें खुलासा यही है इस पूरी बहस का कि मुर्दे पर नौहा नहीं करना। अब नौहा किस्म की जितनी भी चीजें हैं वो सब इसमें शामिल है। अरब के लोग किराए पर औरतें भी लेते थे और वो औरतें आ करके रोती थीं और खूब जम के रोती थीं। और ये रोने की जो गर्मी है, आवाज है, सीना पीटना है, चेहरा पीटना है और आंसू बहाना है, इसका पूरा दारो मदार पैसे पर होता था। जितना ही ज्यादा उनको पैसा दिया जाता था उतना ही ढंग से रोती थी, खूब चिल्ला चिल्ला करके। इसी वजह से एक मुहावरा बोला जाता है, लैसति सक्ला कल मुस्ताजरा, अस्सक्ला हियल मरअतु लती माता वहीदुहा। सक्ला उस औरत को कहते हैं जिसका अकलौता बेटा मर गया हो, और मुस्ताजरा वो औरत है जो किराए पर आई है और रो रही है। इसके आंसुओं का कोई एतबार नहीं। इसके आंसू बिल्कुल वैसे हैं जैसे मगरमच्छ के आंसू। मगरमच्छ के आंसू भी मुहावरे के तौर पर बोला जाता है। मगरमच्छ दरिया में रहता है और इसकी आंखों से मुसलसल पानी बहता रहता है ताकि उसकी आंख में जो बालू के जर्रात आते हैं वो धुलते रहें और धुलते रहें। वो आंसू नहीं है, हकीकत में वो आंसू नहीं है। ऐसे ही ये मुस्ताजरा और किराए की रोने वाली है। लैसति थकला कल मुस्ताजरा, जिसका बेटा मर गया है, ये किराए पर रोने वाली औरत के मानिंद नहीं हो सकती है। बाब यहाँ पर जो हमारी रिवायत आ रही है हजरत जाबिर की है। वो कहते हैं मेरे वालिद को लाया गया और उहुद के दिन, उहुद में इनके वालिद शहीद कर दिए गए थे। असल में हजरत अब्दुल्ला शाम ही को अपने बेटे को बुलाकर उन्होंने पूरी वसीयत कर दी थी और कह दिया था, बेटे मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं ही शहीद हूँगा, इसलिए तुम अपनी बहनों का ख्याल रखना। अब्दुल्ला की 9 बेटियां थीं और ऐसे ऐसे करना और मेरे कर्ज की अदायगी कर देना। तो फिर पहले ही वो शहीद हो गए और काफिरों ने उनका मुसला कर दिया और उनका हाथ काट दिया, पैर काट दिया, नाक वगैरह काट दिया। हत्ता वुदिया बैना यदे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंग खत्म हुई। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सब लाशें लाई गई, इनको भी लाया गया।
اور ایک کپڑا ان کو اوڑھا دیا گیا تھا. میں ان کا چہرہ کھولنا چاہتا تھا پر میری قوم کے لوگ مجھے روک دیتے تھے. پھر میں کپڑا اٹھا کر کے چہرہ کھولنا چاہتا تھا, میری قوم کے لوگوں نے روک دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا اور کپڑا اٹھایا گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, جنازہ اٹھایا گیا. ایک چلانے والی چلائی اور رونے والی روئی. اس کی آواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. آپ نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ عمرو کی بیٹی ہیں یا عمرو کی بہن ہے. کہا کیوں رو یا نہ رو؟ فرشتے ان پر سایہ کیے ہوئے تھے اپنے پر سے, یہاں تک کہ ان کو اٹھایا گیا. یہاں پر حافظ ابن حجر اس کے بارے میں کہتے ہیں, اس کا خلاصہ یہ ہے ان ھذا الجلیل القدر الذی تظلہ الملائکہ, یہ عظیم صحابی جن کے اوپر فرشتے اپنے پر سے سایہ کیے ہوئے تھے, لا ينبغی ان یبکى علیہ, ان کے اوپر رونا مناسب نہیں ہے. بل یفرح لہ بما سار الیہ, بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ ان کا انجام کتنا اچھا ہوا اور کتنا بہتر ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.